Hello everyone. Today we are doing chapter number 2 from Flamingo Poetry, an elementary school classroom in slum. Before doing the summary in English and in Hindi, let's talk about the poet. Stephen Spender, who was born in 1909 and he died in 1995. He was an English poet and he has also written essays. He left University College Oxford without taking a degree and went to Berlin in 1930. Spender has an interest in politics and he has written some of the books. So let's start the summary. The children of an elementary school classroom in a slum look pathetic and miserable. They have pale and lifeless faces. Their disorderly hair are torn around and look like rootless weeds. They are depressed and keep their heads down. They have studied growth. They inherit the disease of their parents. They do have dreams. A young, sweet boy is sitting unnoticed at the back of his dim classroom. He is dreaming of squirrel game and increase, and of other interesting places other than his dull and drab classroom. एक गंदी बस्ती में एक पाठशाला है जिसमें कक्षा में बच्चे जो है अत्यंत इमोशनल और दयनीय लग रहे हैं। उनके जो चेहरे हैं वो पीले पड़े हुए और निर्जीव है, मुरझाए हुए चेहरे हैं। उनके जो बाल है ऊपर खा पड़े हैं, जैसे जंगली पौधों की भांति उनके दिख रहे हैं। वे बहुत उदास हैं, उनके सर उन्होंने अपने नीचे झुका रखे हैं। उनका जो विकास है वो रुका हुआ है और उन्हें माता पिता से उनको बीमारियां जो है विरासत में मिली हैं। उनके भी अपने सपने हैं, जिनमें से एक छोटा सा सुंदर लड़का है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। वह अपने धुंधले कक्षा में सबसे पीछे बैठा हुआ है और वृक्षों में जो गिलहरी का खेल देख रहा है और उसकी रुचिजनक स्थानों के स्वप्न देख रहा है, यानी कि सपने देख रही है जो उसके नीरस और बदरंग कक्षा कक्ष से अलग है। वो इंटरेस्टेड नहीं है कक्षा में बैठने के लिए और वो अपने सपने ही देख रही है बैठी हुई। The gifts given as donations and the picture of Shakespeare head are hung on the unpleasant creamy walls. जो गिफ्ट्स में मिली हुई है या डोनेट की हुई है कुछ पिक्चर से शेक्सपियर की, वो उनके जो क्रीमी वॉल है, जो कमरे का कलर है क्रीम कलर का, वहां पे टंगी हुई है। बट दीज आर यूजलेस टू दीज अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन, लेकिन ये यूजलेस है इन लोग बच्चों के लिए। इन द अर्ली मॉर्निंग द स्काई इज क्लाउडलेस, बादल नहीं है। Domes of the institution of civilized world shine in every city, so they are in Tyrol Valley. Music of bells and fragrance of flower pervade them. The map of this world is made and reshaped by the people in power. But for these children of a school in slum, that word is meaningless. Their own windows are dirty, unpleasant surroundings form their world. The fog of uncertainty dominates their future. They are doomed to live in narrow streets closed in bluish grey sky. Their world is far away from the rivers, caves, and stars. तो ऑस्ट्रेलिया में टायरोल घाटी भी ऐसी दिखती है जैसे उनके स्कूल का क्लासरूम दिखाई दे रहा था। उनकी जो शिक्षा इंस्टीट्यूशन है, संस्थाएं हैं, वैसे दिखाई दे रही थी। वहां पे भी घाटियों का संगीत और फूलों की सुगंध विद्यमान है। संसार में जितने भी चित्र उन लोगों द्वारा तैयार किए गए हैं उनको पुनः उसका रूप दिया गया है उन लोगों के लिए अच्छा है जो सत्ता में है, जो वेल नोन है, हाई लेवल पे है। लेकिन जो गंदी बस्ती में विद्यालय के जो छात्र हैं उनके लिए संसार जो है अर्थहीन है, उसका कोई मतलब नहीं है। उनकी तो खिड़कियां भी गंदी है, असुहावना वातावरण है जो संसार का निर्माण करता है। और एक उनके भविष्य पे कोहरा सा जमा हुआ है, फॉग है, धुंधलापन है। उनके भाग्य जो है तंग गलियों में रहना है और जो आकाश है वो भूरे रंग का आकाश है जो घिरा हुआ है उनके ऊपर का, जैसे कहते हैं काले बादल मंडरा रहे हैं। उनका जो संसार है नदियों सितारों के संसार से दूर है, बहुत दूर है।
Shakespeare hold no interest for them, nor the map of the world does them any good. This map shows the world which is not theirs. This world is full of attraction. They are beautiful shape, warmth of the sun and love. They entice these children. They are tempted to steal them away by running away for their miserable surrounding. They live in their narrow, crowded halls and lairs. Their life starts with a fog off and ends with endless night of their death. On the heap of the waste, these small children wander with their bones peeping out of their skin, wearing spectacles of steel with mended glasses. They look like pieces of broken bottles on stone. All their time and space is spent in this dirty and foggy slum. These slums are nothing less than living hells. Actually, they are a blot on their civilized world, the world of the rich and the great. जो शेक्सपियर है उसमें उनको बिल्कुल भी रुचि नहीं है, जो संसार के जो मैप्स बने हुए वो उनकी कोई भलाई नहीं करता है। वो ऐसे मानचित्र हैं जो संसार को तो दर्शाता है पर उनका संसार नहीं है। उनका जो वर्ल्ड है वो आकर्षणों से भरा पड़ा है। सुंदर जहाज हैं, सूर्य हैं, मानव प्रेम की गर्मी बच्चों को ललचाती रहती है। ये उन्हें दयनीय वातावरण से दूर भगाकर उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रलोभित करती है। वे अपने तंग दिलों यानी कि जो तंग गलियों में उनके घर हैं और उसमें अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। उनका जो जीवन है वो एक कोहरे से आरंभ होता है और मृत्यु तक अंतहीन रात में समाप्त हो जाता है। कूड़े के ढेरों पर ये बच्चे अपनी खाल से बाहर झांकती हुई हड्डियों के साथ भटकते रहते हैं। वो इतने कमजोर हैं कि उनमें मांस तो है ही नहीं, सिर्फ हड्डियां हड्डियां दिखाई देती है। पैबंद लगे शीशों से जड़े स्टील के चश्मे पहने वे ऐसे लगते हैं जैसे पत्थरों पर बोतलों के टुकड़े, टूटे हुए टुकड़े। ये गंदी बस्तियां साक्षात जीवित नरक से कुछ कम नहीं है, बिल्कुल नरक की तरह है जिसमें कोई रह नहीं सकता, लेकिन इन बच्चों को वहीं तंग गलियों में ऐसी नरक गंदी बस्तियों में रहना पड़ता है। वास्तव में ये उनके सभ्य संसार पर एक कलंक है। वे संसार जो अमीर और महान लोगों का है, गरीबों का नहीं। The map of civilized world and the slum of these unfortunate children are two entirely different worlds. Governors, inspectors, visitors, and other important persons must bridge this gap. They must peep into the world of the children living in the slum. They must make their own world, the world of the slum children too. The unsuitable environment of the slum has blocked all their gaze to progress. They are lying shut like catacombs, which means underground graves. These obstacles should be broken. Everything that bars them should be broken. They must be allowed to breathe in the open. They must be allowed to come out of their narrow lanes and dirty slum of the town. Let them enjoy the beauty of Greenfield. Their world should extend to the sky blue waves rising over the golden sand. Let the page of wisdom be open for them. Let their tongues express themselves freely without any check or fear. Only those people make or create history whose language has warmth and strength of the sun. जो सभ्य संसार का जो मानचित्र है, जो मैप है, उसमें जो अभागे बच्चे हैं जो स्लम की गंदी बस्तियों में पैदा हुए हैं, वो उनके लिए जो संसार है दोनों तरह से भिन्न है। जो बड़े बड़े लोग हैं, राज्यपालों, प्रशासकों, निरीक्षकों, आगंतुकों के वे अन्य महत्वपूर्ण जो लोग हैं, इस अंतर को उन्हें कम करना चाहिए। उन्हें इन गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चों को जीवन में झांक कर देखना चाहिए और उन्हें अपने संसार को इन गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चों का संसार भी बनाना चाहिए। जैसे वो खुद रहते हैं, उन्हें उनके लिए भी कुछ अच्छे कार्य करने चाहिए। गंदी बस्तियों के वातावरण जो है उनकी प्रगति के लिए जो मार्ग है
वो रोके हुए हैं। वे भूमिगत कब्रों की भांति बंद पड़े हुए हैं। ये रुकावटें जो है इन्हें तोड़ देनी चाहिए, और हर चीज जो इन्हें बांधती है उसे भी तोड़ देना चाहिए। उन्हें खुली हवा में सांस लेने देना चाहिए, और उन्हें नगरों की गंदी बस्तियों की तंग गलियों से बाहर निकालने की अनुमति देनी चाहिए। उन्हें हरे खेतों की सुंदरता का आनंद लेने दीजिए। उन्हें संसार का सुनहरी रेत पर उभरती नीली नीली समुद्री लहरों का विस्तार करना चाहिए। उनके लिए जो बुद्धिमत्ता की पुस्तकों के पृष्ठ खोल दो, जो नॉलेज देती हूँ, ऐसी बुक्स हैं उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। उनकी जुबानों यानी कि जिलों के बिना किसी बंधन या भय से उनको फ्री कर देना चाहिए। केवल वह लोग इतिहास का निर्मित तथा सृजित करते हैं जो जिनकी भाषा में सूर्य की ऊष्मा और ऊर्जा शक्ति हो। तो बेसिकली इस पोइट्री में यही बोला गया है कि गरीब जो बच्चे हैं जो स्लम एरिया में रहते हैं, उन्हें भी जीने का पूरा हक है, जैसे कि रिच लोग, अमीर लोग रहते हैं। तो कुछ जितने भी हाई लेवल के लोग हैं उनको थोड़ा सा बस्ती में रहने वाले बच्चों को देखना चाहिए, और जो बेनिफिट्स वो लोग ले रहे हैं उनको भी वो बेनिफिट्स देना चाहिए, ताकि उनके जीवन में भी विकास हो। So this was the poetry. Hope you like my video. अगर कोई क्वेश्चन है प्लीज आप कमेंट कीजिए, एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर वीडियोस। थैंक यू।